that is 3 times of the 2 is the 6 hours. Okay, so this we will be trying to learn how this is to be found out. So it has been mentioned T0 is the integral multiplier of the T0, that is the capital T0 is the available duration of the unit hydrograph. This can be done by simple principle of superposition. वैसे ये इसमें भी बताया गया है कि this is the original 2 hours unit hydrograph. The second unit hydrograph is again lagging by 2 hours. The third unit hydrograph is again lagging by the 2 hours. If we add the ordinates of all these 2 hours unit hydrograph, then we will get the ordinate of the 6 hours unit hydrograph, again by the principle of the simple superposition. Okay, so ultimately what in the initial phase of today's discussion, what we'll be trying to understand, that is the construction of unit hydrograph of different unit duration from the unit hydrograph of some given unit duration. Okay, and here in first part we'll trying to understand the in the integral multiple with the available unit hydrograph duration and the required unit hydrograph duration. Okay, so let us see that we have been, as I have told you, derive a unit hydrograph of the 6 hours unit duration. T0 is from a given unit hydrograph of 2 hours unit duration. ऐसा हमें दिया है कि 6 hours unit hydrograph का न्यूमेरिकल है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वैसे कि एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया, डिराइव यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ 6 आवर्स यूनिट ड्यूरेशन, मींस स्मॉल t0 इज इक्वल टू 6 आवर्स एंड जो अवेलेबल है वो 2 आवर है। ओके, so this 6 hours is in integral multiple of 2 hours, that is 3 times of the 2 is the 6 hours. Okay, it has been shown here also for your understanding. How numerically it can be solved, that will also we discuss, but such types of the simple numericals appear in the एग्जाम में ऐसे सोपे भी न्यूमेरिकल आते हैं, या पहले के जैसे हमने दो देखा उस टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, this can be obtained by taking the sum of the ordinates of the 3 unit hydrographs of 2 hours duration, each lagging from other by 2 hours, and dividing the sum by 3. Okay, I will try to make you understand. We want the unit hydrograph. We want the unit hydrograph of the duration 6 hours, means we want a 6 hours unit hydrograph from 2 hours unit hydrograph. Okay, so what we will do, we will presume that the rainfall of 2 hours is occurring, and due to that rainfall, this is the runoff unit hydrograph we are getting, and the second rainfall consecutive occurring exactly after 2 hours, the runoff hydrograph or the runoff due to this rainfall is again consecutively appearing in the stream after 2 hours, and the third rainfall, because we want 6 hours unit hydrograph, so third rainfall, due to third rainfall, again third runoff hydrograph we will be getting. Okay, now what will be the effect of all these 3 consecutive rainfall excesses as has been given for the unit hydrograph? The combination of these 3 will give you the direct runoff hydrograph. Please listen the words I am using. The combination of the result or the combination of these 3 unit hydrographs of 2 hours rainfall excess will give us the direct runoff hydrograph. Okay, will give us a direct runoff hydrograph of 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter, means 3 centimeters of the rainfall. Okay, due to the 1 centimeter of the rainfall, this hydrograph is the result. Due to another centimeter which is occurring exactly after 2 hours, and third one is again occurring exactly after 2 hours,
So these three will result into a runoff or into a runoff hydrograph, which will give us 3 centimeters of the runoff. Okay, but we know by definition that the unit hydrograph always gives 1 centimeter of the runoff. तो ये तीनों को जमा करने के बाद में या सम करने के बाद में जो भी हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट आएंगे या जो भी रन ऑफ आएगा उसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ मिलेगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज फॉर द 3 सेंटीमीटर्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. वी वांट यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो देयरफॉर द समेशन ऑफ ऑल these 3 which are lagging by 2 hours. ठीक है, कैसा सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं हम. ऐसे as has been illustrated, ये फिगर में बताया, in which it is clear that the peak discharge, ये जो peak discharge है Q dash M, okay, of the new hydrograph, of the new unit hydrograph of 6 hours is less than QM. This the total discharge due to this one hydrograph, second hydrograph, third hydrograph, but of the unit hydrograph, that discharge is Q dash M, जो निकालेंगे हम आगे में देखेंगे. ये इंडिविजुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो डिस्चार्ज है मैक्सिमम उससे कम है. ठीक है, इफ हाउएवर T0 इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T0, देन द मेथड ऑफ S हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड. यदि जैसे अभी ये 2 आवर्स से हम 6 आवर्स का निकाल रहे हैं, 4 आवर्स से 12 आवर्स का निकाल सकते हैं, 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ से 9 आवर्स का निकाल सकते हैं. लेकिन हमें यदि बोला कि 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ है और आप 5 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालिए तो क्या करेंगे? ठीक है, जो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है तो फिर हम एस हाइड्रोग्राफ मेथड है उसको जैसे जैसे हमें समय मिलता है वैसे हम उसको समझ लेते हैं. ठीक है, अभी जो पहला है उसको पहले समझ लेते हैं. द आवरली हाइड्रोग्राफ्स ऑफ ए 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ आर गिवन बिलो, दे आर द गिवन बिलो, and derive the 6 hours unit hydrograph for the same catchment. है ना, the word is very important, for the same catchment, because we are applying the available unit hydrograph of a unit duration of 2 hours to find out the unit hydrograph of 6 hours. Okay, and for the same catchment. So how it is to be done, you can see. What we have done, we have to do now, कि तीनों जो 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो तीनों हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट की टोटल करना है. लेकिन जो दूसरा हाइड्रोग्राफ है, जो सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वो पहले हाइड्रोग्राफ के 2 आवर बाद में आएगा. क्यों 2 आवर बाद में आएगा? क्योंकि हम ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि हमें 6 आवर्स का निकालना है, विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 आवर्स. तो we are assuming as if the second rainfall of 1 centimeter, okay, due to the 2 hours excess rainfall duration occurring after 2 hours, यानी पहले रेनफॉल आने के बाद में पहला जो रेनफॉल है 1 सेंटीमीटर का जिसका ये हाइड्रोग्राफ है, उसके बाद में उसके 2 घंटे के बाद में दूसरा रेनफॉल चालू होगा और वो दूसरे रेनफॉल के कारण जो रन ऑफ आएगा वो रन ऑफ की वैल्यू हम 2 घंटे के बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल में है या ये सिंपल मल्टीपल में है. ज्यादा इंटीग्रल दिमाग को तकलीफ होती होगी तो ये 2 और 6 एक में के गुणक में है, मल्टीपल में है, ऐसा बोलेंगे. और तीसरा जो हाइड्रोग्राफ है, थर्ड हाइड्रोग्राफ, अगेन व्हाट इज हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ इज द रिजल्ट ड्यू टू द रेनफॉल. रन ऑफ ही बताता है हाइड्रोग्राफ. तो थर्ड हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द थर्ड रन ऑफ इन द स्ट्रीम, बट दिस रन ऑफ इज 1 सेंटीमीटर, इज ऑकरिंग आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर द सेकंड रेनफॉल. ठीक है, यानी पहले के बाद में 6 आवर्स. सो आफ्टर द फर्स्ट रेनफॉल इज ऑकरिंग आफ्टर 2 आवर्स, दैट इज 2 आवर्स, एंड द सेकंड रेनफॉल इज ऑकरिंग आफ्टर 2 hours of the second rainfall, therefore after 4 hours. ठीक है, तो ये तीनों इस हिसाब से हम लिखेंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए.
पहले, ड्यू टू द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 6 आवर्स रेनफॉल विच हुज वैल्यू विल बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये तीनों की फिर हम करेंगे सम। So this sum is nothing but the ordinates of a direct run of hydrograph of the rainfall 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू को फिर हम, बिकॉज वी वांट द यूनिट हाइड्रोग्राफ, therefore these values are divided by 3 centimeter to get the ordinates of 6 hours unit hydrograph. So these are the values which are given 2 hours unit hydrograph. Then by offsetting 2 hours, तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट यानी 2 घंटे के बाद में जो वैल्यू लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑफसेट। सो बाय ऑफसेटिंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ और द ऑफसेट यूनिट हाइड्रोग्राफ आफ्टर 2 आवर्स, ये ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला सभी जने समझ लीजिए, ये ऑफसेटिंग हम बार बार यूज करने वाले हैं बाद में। सो द ऑफसेट यूनिट हाइड्रोग्राफ will be exactly after 2 hours. The ordinates will be same because the rainfall value is 1 centimeter and occurring for the 2 hours duration. So the runoff will be same as has been here for the first. So 0, 1, 2.7, 5, 8, 9.8, etc. up to the last. You can see now the time base of the hydrograph has increased. Initially it was 15 hours. Now it has converted into 17 hours because lagging by 2 hours. So 17. And next will be again 17 plus 2, 19 hours. So again these things are to be brought into your mind. These things are to be considered for understanding. तो ये सब की sum किया. These are the ordinates of the direct run of hydrograph due to the occurrence of the rainfall of 1 centimeter, lagging by 2 hours after 1 centimeter, lagging by 2 hours after again 1 centimeter rainfall, उसके कारण रन ऑफ है ना। एज इफ ऐसा समझ लीजिए कि 3 रेनफॉल आ रहे हैं, पहला आया वो 1 सेंटीमीटर आया क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, तो वो आया फॉर द 2 आवर्स, उसके कारण ये रन ऑफ। दूसरा रेनफॉल 1 सेंटीमीटर ही है लेकिन वो 2 घंटे बाद में आया, और तीसरा रेनफॉल 1 सेंटीमीटर है, वो फिर से दूसरे के 2 घंटे के बाद में आया। तो टोटल हो गया 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 2, दैट इज द 6 आवर्स। ओके, सो द 6 आवर्स हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो ये जो ये तीनों की सम किया तो ये तीनों आ गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। इसका यदि हमने एरिया निकाला और वो अगर उसके क्यूबिक मीटर को कैचमेंट एरिया से डिवाइड किया तो ये वैल्यू डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर आएगी। तो हमें तो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो ये वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी राउंड किया है। या आखिरी कॉलम जो है, आखिरी कॉलम इज नथिंग बट द मॉडरेटेड और बिट राउंड और करेक्टेड। जैसे 0.33 है तो 0.3 लिखा है, 0.92, 3.57 है तो इसके राउंड किया 3.6, 5.27 को 5.3। ओनली द लास्ट कॉलम इज नथिंग बट द राउंडेड फिगर्स। ओके, नाउ यू कैन सी ऑर्डिनेट्स ऑफ ए 6 आवर्स moderated unit hydrograph. Okay, so this is the hydrograph due to the rainfall of 6 hours, but this is a unit hydrograph. You can see its base is now 19 hours. Initially the unit hydrograph of 2 hours has the base of 15 hours. The 6 hours unit hydrograph has got the base of 19 hours. And now you can see that peak value. Therefore I have shown it particularly. The peak value of this unit hydrograph of 2 hours, peak value means peak runoff value, is 9.8. But the peak value of the 6 hours unit hydrograph is 7.8. Though it is the summation of the 3 hydrographs, but that summation is divided by 3. Therefore, that peak value is 7.8. Okay, so these things are to be observed in your mind. Okay. Again so here again it has been the same thing has been shown here. I tried to show it. It should be clearly noted that summation O of 6 hours unit hydrograph
so obtained should be same as summation O of the unit 2 hours unit run, यानी इसकी यदि सम किया तो इसकी सम और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसकी सम, दिस सम शुड बी सेम, बिकॉज if we divide by the catchment area it will be it should be 1 centimeter, तो इसलिए इनकी सम सरीख ही आना चाहिए, so that each will show you the runoff of 1 centimeter. Also we know that while the peak discharge of the 2 hours unit hydrograph is 9.8 occurring at 5 hours, ये जो 9.8 है ये 5 hours को आ रहे हैं, the peak discharge of 6 hours unit hydrograph is 7.8 and it is occurring at 8 hours. Okay, occurring at 8 hours. So these are the things to be notified, friends. Again, a similar example, a 4 hours unit hydrograph has been given. Okay. If you want to solve on your own, you can take the snapshot and notes में है तो फिर खुद solve करके देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अभी हमारे पास में समय है तो जितना दे सकते हैं एक बार आपको फिर से समझने के लिए थोड़ा इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये जैसे 4 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वी हैव 4 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज द बेस ऑफ द 34 hours, 0, 2, 4, 6, 8, 12, all I think all has got the equal time interval. This is the 4 hours unit hydrograph ordinates. Again हाइड्रोग्राफ और उसके ऑर्डिनेट यानी ये डिस्चार्जेस है, ओके। दीज आर ऑल द डिस्चार्जेस थ्रू द स्ट्रीम मेजर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम दिस टाइम स्टार्टिंग टाइम टू द 34 hours, ठीक है। ये आप समझते जाइए, ये 4 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यानी 4 घंटे का यदि रेनफॉल एक्सेस है, बारिश आती है तो 4 घंटे के लिए ये नदी में रेनफॉल मिलता है। अब हमें क्या चाहिए कि वही कैचमेंट एरिया में यदि 8 घंटे का रेनफॉल एक्सेस है या 12 घंटे का रेनफॉल एक्सेस है तो उसके लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या रहेगा, है ना। यानी ये यदि निकाला तो हम फिर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी निकाल सकते हैं। बाय डूइंग ऑल दिस और बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस जगलरीज, व्हाट अल्टीमेटली वी ट्राई टू अचीव, we are trying to achieve the direct runoff hydrograph because we want the discharge, flood discharge. Okay, so ordinates of the 4 hours unit hydrograph ये हमने लिख दिया जैसे दिए है हमने। अब we want 8 hours unit hydrograph ordinates. Okay, okay. So therefore what we will do, again the next hydrograph unit hydrograph, it is lagging by 4 hours, यानी 4 घंटे के बाद में जैसा कि दूसरा बारिश चालू होने वाली है, तो क्योंकि हमें 8 घंटे के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, 8 hours of the rainfall excess. So by using the 4 hours, we will be trying to find out the 8 hours. So the second ordinates we will write after 4 hours. जैसे ये पहला है तो ये 4 घंटे के बाद में 0, दूसरा है तो इसके बाद में 4 घंटे यानी 6 घंटे, है ना। नोटबुक में आप लिखते जाइए, ऐसा सॉल्व करेंगे तो ही ध्यान में आएगा कि हमने कैसा किया है। दूसरा 0, तीसरा 12.52 यानी 4 घंटे के बाद में है, कुछ नहीं, इसको ही रिपीट किया, सिर्फ लैगिंग बाय 4 hours. ओके, देन द थर्ड कॉलम इज वेरी सिंपल, that is summation of the 2 and 3, that is 0, 12.52, 21.32, 23.54 plus 12.52, 36.06, 17.84 plus 21.32. In this way all this summation is done. But these are the two hydrographs, this is for the 1 centimeter, this is for the 1 centimeter. So the combined hydrograph has got the runoff of 2 centimeters, 1 centimeter plus 1 centimeter, 2 centimeters. But we want a unit hydrograph. Okay, the runoff should be 1 centimeter. So what we will do, all these ordinates, to all these ordinates we will divide by 2. ठीक है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर रन ऑफ है, इसका आता है, हमें तो 1 ही सेंटीमीटर रन ऑफ चाहिए। तो 8 घंटे की भले ही ड्यूरेशन रहे, ड्यूरेशन डबल है, लेकिन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालते वक्त हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 12.52 by 2, 6.26, 21.32 divided by 2, 10.66. In this way all the values are found out.
So these are the ordinates of the 8 hours unit hydrograph. So first part of the numerical we have solved. Okay. Now the next, we have been asked to find out the ordinates of the 12 hours unit hydrograph. Okay. Again, we are repeating the same process. These are the ordinates of the 4 hours unit hydrograph. These are given to us. Then lagging by 4 hours, यानी 4 घंटे के लैगिंग से फिर से हमने लिख दिया, और इसके बाद में 4 घंटा यानी शुरू से 8 घंटे, लैगिंग बाय 8 hours. So for the lagging by 8 hours, again the same ordinates we have written in the fourth column. ठीक है, सिंपल है बिल्कुल. आप जब तक के सॉल्व करके देखेंगे नहीं, ये आपको समझेगा नहीं. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना ही है नोटबुक में. लगे तो कल मुझे आप बताइए नोटबुक में कि सर हमने सॉल्व करके देखा है करके. और ये तीनों की फिर सम किया, सिंपल. द कॉम्बिनेशन और समेशन ऑफ ऑल these 3 hydrographs, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. This is the direct runoff hydrograph. I am not using the word unit hydrograph. This is the direct runoff hydrograph which has got a runoff of 3 centimeters. ठीक है, इसका runoff कितना है? 3 सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर runoff है. इसका मतलब ऐसा होता है कि जो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया में जो पानी जमा हो रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव रेनफॉल के कारण, वो पानी की डेप्थ 3 सेंटीमीटर है. यदि वो पानी को हमने बहने नहीं दिया नदी नालों में और कैचमेंट के ऊपर ही जमा करके रख दिया, तो वो 3 सेंटीमीटर डेप्थ हमें कैचमेंट के ऊपर मिलेगी. तो ये टोटल रन ऑफ को यदि हम कैचमेंट एरिया से डिवाइड करते हैं, यदि सबकी टोटल करते हैं, and if we divide it by the catchment area, okay, multiplied by the duration, this difference duration, तो हमें जो डेप्थ मिलेगी वो 3 सेंटीमीटर जरूर मिलेगी. ठीक है, इसलिए हमें तो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ. 4 hours plus 4 hours plus 4 hours, 12 hours unit hydrograph. So therefore all these ordinates are to be divided by 3, then we will get the 12 hours unit hydrograph. You can see here also that here the peak value is at the 6 hours, 23.64. For the individual 4 hours hydrograph, the peak value is 23.64. But for this hydrograph, the peak value is 17.11 for the combined hydrograph, which is less than 23.54. Okay, and also occurring at 12 hours. तो ये कुछ पिक्यूलरिटी हमारे ध्यान में आना चाहिए. इसका बेस, टाइम बेस जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ का 4 आवर्स का, वो 34 आवर्स है, और इसका जो है वो 42 आवर्स है. ठीक है, अगेन ये जो टाइम बेस है, ये टाइम बेस को जो है वो रेनफॉल के ड्यूरेशन और इससे वैसा कोई इसका रिलेशन नहीं है. ये हमें समझ लेना है, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया, वैसे 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक ऑर्डिनेट है 23.54, 6 आवर्स में आता है, और बेस पीरियड 34 घंटा है. अभी मैंने आपको यही चीज बताई. 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक है 19.58, वो 8 आवर्स में आता है, उसका बेस पीरियड है 38 आवर्स. और 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का है, पीक है 17.11, जो 12 घंटे के बाद में आता है, और उसका बेस पीरियड है 42 आवर्स. ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज अगेन a simple thing that how we can correlate the runoff or the actual flood values and the hydrograph, or from hydrograph how we can again bring back the floods. All these things are very important at this juncture as well as whenever you will be in the industry या जॉब में जब जाएंगे. जैसे ये फिर से और एग्जांपल है, 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इस पर से 12 आवर्स निकालना है. ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ. ठीक है, ये मैं इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, आप चाहिए तो इसका स्नैप ले सकते हैं एंड यू कैन शो मी टुमारो और व्हेनेवर हमारा जो लेक्चर रहेगा, और उसमें आप शुरू में मुझे हर एक जन अपने नोटबुक में फोटो जब लेंगे तब ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है करके बताएगा. ठीक है, आई थिंक एवरीबडी हैज टेकन द स्नैप.
नाउ ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्राफ बताया है, ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया है। ये जैसे इंडिविजुअल 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के हाइड्रोग्राफ है, ये तीनों का टोटल किया तो ये 3 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ है, ये 1 सेंटीमीटर रेनफॉल फॉर द 4 आवर्स, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल आफ्टर 4 आवर्स इज ऑकरिंग, and 1 सेंटीमीटर rainfall after 8 hours, that is total is 12 hours बारिश। 12 आवर्स बारिश के कारण ये इतना रन ऑफ आ गया है जो 3 सेंटीमीटर है। ये रन ऑफ को, ये वैल्यूज को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा जिसका ड्यूरेशन 12 आवर्स रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, दिस यू कैन सॉल्व, दिस यू कैन टेक एज योर होमवर्क। ठीक है, मुझे लगता है फिर से एक बार आपको चाहिए समय तो आप ये ले सकते हैं स्नैप लेने के लिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जाने वाले हैं जिसको बोलते हैं एस हाइड्रोग्राफ, या इसको समेशन हाइड्रोग्राफ भी बोला जाता है। वी हैव सीन अर्लियर फ्रेंड्स दैट वी कैन फाइंड आउट द यूनिट हाइड्रोग्राफ or we can find out the direct run of hydrograph from the unit hydrograph available, from the unit hydrograph values available, but they should be in multiple, they should be in multiple of the available unit hydrograph values. Okay, or either they should be in multiple or they should be same। यानी हमने जो पास्ट में जो भी 5-6 न्यूमेरिकल देखे तो उसमें ऐसा देखा कि हमारे पास में यदि एक आधा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यानी वो हाइड्रोग्राफ की वैल्यूज है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ द डिफरेंट रेनफॉल इंटेंसिटी बट ऑफ द सेम ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमने एक देखा। दूसरा हमने ऐसा भी देखा कि यदि हमारे पास में यूनिट हाइड्रोग्राफ है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, देन फ्रॉम दैट यूनिट हाइड्रोग्राफ वी कैन फाइंड आउट द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू द रेनफॉल ऑकरिंग कॉन्जिक्यूटिवली, यानी एक के बाद एक, बट विथ डिफरेंट इंटेंसिटीज बट ऑफ द सेम ड्यूरेशन। ऐसे दूसरा एक न्यूमेरिकल देखा। और तीसरा हमने अभी जो आज देखा वो ऐसा देखा कि हमारे पास में यदि यूनिट हाइड्रोग्राफ है ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन कैपिटल T0, एंड इफ वी वांट ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ सर्टेन अदर ड्यूरेशन which is higher than capital T0, but that capital T0 is in multiple of the small t0, small t0 is the duration of the available unit hydrograph। ये हमने देखा। लेकिन ये तो बहुत इजी हो गया। यदि हमें एक आधे बार ऐसा चाहिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि हमारे पास में 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, इफ वी हैव 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ and we want to find out the hydrograph, unit hydrograph of 5 hours, we want to find out the unit hydrograph of 9 hours, we want to find out the unit hydrograph of 13 hours, which is not in multiple of the 2 hours, what I mean to say। और एक आधे बार हमारे पास में एक आधा यूनिट हाइड्रोग्राफ 6 आवर्स का है, see if we have the unit hydrograph of 6 hours, then I want to find out a unit hydrograph of 3 hours which is less than 6 hours, okay, or I want to find out a unit hydrograph of say 1.5 hours which may not be in multiple of the 6 hours। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस हाइड्रोग्राफ मेथड या समेशन हाइड्रोग्राफ। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द सिंपल प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इनटू यूनिट हाइड्रोग्राफ लॉन्गर ड्यूरेशन कैनॉट बी अडॉप्टेड इफ ड्यूरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ इज आइदर लेस, जैसे 6 आवर्स का है और हमें 3 आवर्स का चाहिए यूनिट हाइड्रोग्राफ, और इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रो, है ना। हमें तो फील्ड में जब एक आधा रन अप चाहिए
तो वो अलग अलग रेनफॉल का भी हो सकता है। तो वी बीइंग द इंजीनियर, we must be ready to solve all type of the eventualities. In such situation, the unit hydrograph of any duration can be obtained from the unit hydrograph of given duration using this S curve technique, or that S curve is also called as S hydrograph, or it is called as the summation hydrograph. The technique of constructing S hydrograph is very useful in deriving a unit hydrograph of shorter or longer unit duration from unit hydrograph of same duration, same unit duration. ठीक है, कहने का मतलब हम ऐसी कोई मेथड करेंगे कि हमें जैसे चाहिए वैसे हम यूनिट हाइड्रोग्राफ पा सकेंगे, और उस पर से जिस डिस्चार्ज के जिस रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए रन अप चाहिए वो हम जगह पे बैठे बैठे निकाल सकेंगे, ताकि वो रन अप के लिए हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकें। ओके, अगेन डेफिनेशन, the definition of the S curve or the S curve hydrograph may be defined as the hydrograph of the direct runoff. Okay, so this S curve hydrograph is the hydrograph of direct runoff resulting from continuous effective rainfall of uniform intensity 1 by d centimeters per hour. Very simple. S curve is nothing but a direct runoff hydrograph. What is S curve? S curve is nothing but a direct runoff hydrograph. This direct runoff hydrograph is obtained from a d hours unit hydrograph. This direct runoff hydrograph is obtained from a d hours unit hydrograph as if the rainfall of the intensity 1 by d, as if the rainfall of intensity 1 by d is constantly occurring, or you can say as if the rainfall of 1 centimeter for duration d, as it completes or as it ceases after time d, the second rainfall starts. Okay, this rainfall again, this rainfall is for the duration d, and this rainfall is 1 centimeter. Okay, because runoff is 1 centimeter. Third rainfall again occurs after exactly this rainfall ends. This rainfall is for the duration d, but it has got the value 1 centimeter. So d duration, the rainfall value is 1 centimeter. Therefore, rainfall intensity is 1 by d centimeters per hour. ओके, तो सिंपल है कि जैसे अभी अपन ने पहले में जो सॉल्व किए कि एक रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है। इफ वी हैव ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ सर्टन डी ड्यूरेशन, डी आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, second unit hydrograph is again starting after d hours. Third unit hydrograph is again starting after d hours. Fourth hydrograph again starting after d hours. तो ये सभी कॉन्जिक्यूटिव हो रहे हैं। तो इन सबके टोटल करके यदि जो हमारे पास में डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा, वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को एस कर्व हाइड्रोग्राफ करके बोलते हैं। ओके, नाउ आई विल, इफ यू हैव अंडरस्टूड, आई विल रिपीट दिस अगेन फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। अभी आपके ध्यान में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत सिंपल है और इसको सॉल्व करना तो और ही सिंपल है। सो एस कर्व हाइड्रोग्राफ may be defined or may be obtained as the hydrograph. This is S curve hydrograph, as the hydrograph of direct runoff resulting from a continuous effective rainfall of the rainfall intensity 1 by d centimeters per hour. ठीक है, क्योंकि ये जो d है, d is the duration of the rainfall, and due to this d we are getting unit hydrograph. यूनिट हाइड्रोग्राफ यानी जिसका डिस्चार्ज 1 सेंटीमीटर है, यानी रेनफॉल एक्सेस भी 1 सेंटीमीटर है। तो रेनफॉल एक्सेस का ड्यूरेशन यदि d है तो रेनफॉल इंटेंसिटी 1 by d सेंटीमीटर पर आवर रहेगी। ठीक है, सो एस कर्व इज कंस्ट्रक्टेड। नाउ द सिंपल
if you have understood, the procedure is very simple. S curve is constructed by adding together series of the d hours unit hydrographs, each lagging or each lagged by d hours with respect to previous one. है ना, हमने इसके पहले ऐसे किया था कि हमें यदि 4 hours का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इफ वी वांट द 12 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ वी कैन फाइंड इट. जैसे ये पहला 4 hours, दूसरा 4 hours, तीसरा 4 hours, पहला दूसरा और तीसरा तीनों का मिलके ये बड़ा हाइड्रोग्राफ बन गया. और इसको यदि 3 सेंटीमीटर से डिवाइड किया तो 12 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ. लेकिन यहाँ हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट रन ऑफ टोटल हाइड्रोग्राफ. एस कर्व इज नॉट ए यूनिट हाइड्रोग्राफ. It is obtained from the unit hydrograph, but it is the hydrograph due to the summation of all the unit hydrographs whose duration is d, and these hydrographs are the result of the consecutive rainfall of the d hours duration, okay, whose runoff or whose rainfall value is 1 centimeter. The S curve hydrographs attains a constant ordinate. तो ऐसे जब हम सम करते जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है ये समेशन करते वक्त कि दिस S कर्व अटेन्स और गेन्स, ये सॉल्व करते वक्त और हमारे अच्छे से ध्यान में आएगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसके बाद में डिस्चार्ज बढ़ता ही नहीं है. ठीक है, वो जो इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं आपको कि ये वैल्यू यदि हम एडिशन करते जाते हैं तो वो डिस्चार्ज की बाय लैगिंग बाय दैट डी आवर्स, एंड इफ वी कंटिन्यू एडिंग, जैसे यहाँ पे बताया गया पहला हाइड्रोग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे सम करते गए तो कुछ समय के पश्चात आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन वी विल फाइंड दैट दिस कर्व हैज अटेन्ड द कांस्टेंट वैल्यू. वो कितने समय के बाद में आता है वो भी फिक्स्ड है, वो बताता हूँ बाद में मैं आपको. तो ये वैल्यू जो आती है इसको इक्विलिब्रियम करके कहते हैं. दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. डिनोटेड बाय QE डैश. इट इज डिनोटेड बाय QE डैश अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द, हाँ वो बताया ना मैंने अभी आपको, ये QE डैश कब अचीव होता है? अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द बेस पीरियड T ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ. ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो बेस पीरियड है 42 आवर्स है समझो, अभी इसका पकड़ लेंगे 42 आवर्स दिख रहा है. सो आफ्टर 42 आवर्स दिस मैक्सिमम वैल्यू which remains constant later on, this maximum value or the constant value is attained. This value is called as the equilibrium value of the S curve hydrograph. Thus the number, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? The number of unit hydrographs required to produce the S curve. Therefore, the number of unit hydrographs required, कितने यूनिट हाइड्रोग्राफ हमें लगेंगे कि ये जो बेस पीरियड है 42 आवर्स, ओके, दैट इज द बेस पीरियड कैपिटल T ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय द रेनफॉल इंटेंसिटी, ओके, और डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल और ड्यूरेशन ऑफ द रन ऑफ, है ना, D आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो द duration or the base period of the runoff divided by the duration of the storm, ये जो आएगा, these numbers of the unit hydrograph we will need to find out the ordinates of the S hydrograph. कुछ नहीं, सिंपल समेशन ही करते हैं हम. आखिर में करते क्या है, हर 4, जैसे समझो 4 आवर्स यूनिट, या जैसे यहाँ 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ बताया गया है ना, 6 आवर्स है, सॉरी 6 आवर्स. तो 6 hours unit hydrograph, after every 6 hours the next hydrograph we are getting. So 6, 12, 18, 24, etc. So 42 divided by 6. So 42 divided by 6 is 7 numbers. So we will need 7 numbers of the unit hydrograph to attain the equilibrium value. ये कैसा करते हैं ये हम आगे में और देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें. लेकिन the maximum value, or which is the constant value or constant ordinate, which is called as the equilibrium discharge QE dash, and this Q, how, when we get this QE dash, we get this QE dash at the end of the base period of the first unit hydrograph,
And as we get this at the end of the first unit hydrograph, therefore number of unit hydrographs required is equal to this base period divided by duration of the storm. Okay, that number of the unit hydrograph we will need to reach. और इसके बाद में तो सब वैल्यू कांस्टेंट ही आना है, तो यहां तक हमें निकालना है, और ये निकाला कि हमारा एस हाइड्रोग्राफ के हमारे पास में तैयार हो गया. So S hydrograph ordinates are sometimes found to oscillate in the top portion at and around the equilibrium discharge. बहुत बार क्या होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद में कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, थोड़ी वैल्यू चेंज होते जाती है, कम ज्यादा. एक बार एक्चुअली व्हेन वी फाइंड आउट दिस इक्विलिब्रियम वैल्यू क्यू डैश, इट शुड बी कांस्टेंट लेटर ऑन. लेकिन ऐसा ध्यान में आया है कि ये कभी कभी कि ये कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ऑसिलेट होती है, थोड़ी कम ज्यादा, बहुत नहीं होती, थोड़ी कम ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हंटिंग ऑफ एस कर्व. दिस इज कॉल्ड एज द हंटिंग ऑफ एस कर्व. ठीक है, ये क्यों हंटिंग बोलते हैं मैं कल आपको बताता हूँ. आप हंटिंग का क्या मतलब है जरा थोड़ा सोचिए. आप कहीं तो भी सीरियल वीरियल देखते होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हंटिंग ऑफ द बिल्डिंग और हंटिंग ऑफ एनी प्लेस. सो हंटिंग ऑफ एस कर्व बोलते हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम वैल्यू जब ऑसिलेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द हंटिंग ऑफ एस कर्व. व्हाई दिस हंटिंग ऑकर्स, व्हाई दिस ऑसिलेशन ऑकर्स? बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ. यानी ये यूनिट हाइड्रोग्राफ जब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो वो करते वक्त कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक या कहीं रीडिंग मिस्टेक हाइड्रो डिस्चार्ज लेने में कहीं. So due to errors in the unit hydrograph such as that of the unit hydrograph used in the S curve derivation might not be representing the runoff from the storm of uniform time duration. ठीक है, तो यानी कहीं तो भी in short what we will understand that this hydrograph, unit hydrograph from which we are deriving the S hydrograph is not correctly calculated. Maybe the rainfall is not uniformly distributed over the catchment area. The runoff हमें जो मिल रहा है, that runoff we may not be getting the correct values, and due to this we may not be getting the constant equilibrium discharge, and that discharge varies. And from the exam point of view and from our knowledge point of view, that is called as hunting of S curve. एग्जाम में पूछते हैं एक आध बार व्हाट इज एन हंटिंग ऑफ एस कर्व, तो वो समझना चाहिए. उसका रीजन एक ही है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते वक्त कुछ सम एरर्स आर देयर, सम मिस्टेक्स आर देयर. ओके, दिस मे रिजल्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेम ऑफ द एस कर्व. इसको एस कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिजेंबल्स, ये एस कर्व जैसा दिखता है. द नेम ऑफ एस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द अपर केस लेटर एस. ये एस जैसा दिखता है, इसलिए इसको एस कर्व करके बोलते हैं. ठीक है, और समेशन हाइड्रोग्राफ भी है, उसके लिए भी इसको एस कर्व करके बोलते हैं. ठीक है, ये ऐसा जैसे आपको फिर से और लार्जर स्क्रीन पे आपको बताया. ठीक है, सो टुडे वी विल टेक द ब्रेक एंड हाउ दिस एस कर्व इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज अप्लाइड टू फाइंड आउट द what are its applications, that we will see in our next lecture. Just don't leave the class.